हमारा जो लास्ट हमने पॉडकास्ट रिलीज किया था, आप लोगों ने काफी पसंद किया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, फीडबैक दिए। सो हम आज एक नया गेस्ट के साथ आए हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको काफी सारा सीख मिलना चाहिए। और आज जो हमारा गेस्ट है, ये काफी स्पेशल है। ये अर्न वेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर एंड सीटीओ है। ही हैज बीन ए टेकी फॉर ओवर 2.5 decades। आज अर्न वेल्थ के जो ग्रुप बिजनेस है, it's completely, the tech is completely led by this gentleman. His name is Mr. Divjot Singh, and I warmly welcome Mr. Divjot Singh to my show. Divjot, thank you for taking out your time. Thank you for coming. It's a great honor to have you here, right? Thanks, Rajesh, for inviting me here. So, Divjot, you have been working with IT companies for over 2 decades, and then ऑल ऑफ ए सडन आपने डिसाइड किया आपको बिजनेस करनी है। आप आज एक एंटरप्रेन्योर बने। यू आर हेडिंग द एंटायर टेक डिविजन एंड वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग Gen AI business called Speed Tech. Yeah, Rajesh, first of all, thanks for inviting me here, and thanks for all the introduction that you gave today. Yes, I'm a hardcore techie, so who's been into IT for more than 2 decades, right? And this journey didn't start abruptly. So basically, when I started, IT was much in demand, right? IT was something which was like people was yearning to be a part of IT team, right? And IT was a new field. Even I remember, like we visiting our customers and customers coming and like just trying to see our laptops. Like, are these different laptops? Like, do they have different components to it? Or so that was the time. So this is like 2.5 decades ago. Correct. But when we see now, the idea has totally changed, right? So it is not. So basically, computers, laptops are not something which is out of the world. They're part and parcel of each and every aspect of life. And as far as my entrepreneurial journey is concerned, right? Yeah, it is totally a very different experience than what I was doing as a job. Correct. In my job. Correct. Right. So managing people, right, talking to customers, and then passing requirements, gathering requirements, and seeing that we are successful in our delivery, all those things. But in entrepreneurship, it is mostly you who have to take care of each and Correct. everything. Yeah. Right. You have the ownership. You don't have any cushions. Correct. Right. Be it a brand name. Yeah. Be it a support team above, support team below. Right. Then you are surrounded by many teams who are very much professionally trained to handle those tasks. And they are also very much professionally oriented to grow in their profession. But in entrepreneurship, it is you who is the like center point. Correct. People are looking at you. You guide them, you tell them, right? And then all the cushions of brand names are removed, and you are the solo, like I'll say, a lone wolf there. It is not lone from the aspect of not having team, but lone from the decision making. And people are looking up to you. Correct. And you are without like support, and going along devising the things and the ways to do the things as they should. Correct. I completely agree with you, Divjot, and I feel one of the hindrances जब लोग बिजनेस की तरफ देखते हैं, वो ये है कि कहाँ से शुरू करूं, Right. कैसे शुरू करूं, मैं क्या क्या करूं, राइट? ये पॉडकास्ट के थ्रू मेरा मकसद यही है कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, आपके मेरे जैसे हजारों लोग हैं हमारे देश में, Right. जो बिजनेस कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। और इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारा कोशिश यही है कि हम उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो जगाएं, उम्मीद की किरण जो हम कहते हैं ना, एंड उनको एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए, राइट, कॉन्फिडेंस दें,
राइट? सो आज जो हम आधा घंटा स्पेंड करेंगे हम इसी डायरेक्शन में स्पेंड करेंगे। प्लस मैं ऑफ कोर्स जानना चाहूंगा एज ए सीटीओ आपका क्या विजन है स्पीड टेक को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, राया को लेके। तो आधा घंटा हम लोग बात करते हैं खुल के, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत आसान हो रिलेट करना, सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना। दैट्स द ऑब्जेक्टिव। Right. Yeah, Rajesh. So basically, I will start with two aspects of entrepreneurship. So उसमें से एक aspect ये है कि रोजी पिक्चर और एक है रियलिटी चेक। Yeah. Right. So entrepreneurship जस्ट आप इसके लिए शुरू मत कर लो क्योंकि आपका जॉब में मन नहीं लग रहा है। करेक्ट। राइट। सो जॉब में मन नहीं लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी लीडरशिप आपको बहुत ज्यादा बाउंड कर रही है रूल्स को, प्रोसेसेस को फॉलो करने के लिए, एंड यू वांट टू बी अ लायन किंग आउट इन द मार्केट। सो दैट इज अ फॉल्स परसेप्शन। उसके लिए बिजनेस नहीं है। उसके लिए बिजनेस नहीं है। बिजनेस इज ऑल अबाउट, ये एक तरह की प्रतिज्ञा है, राइट? ये एक तरह की बेसिकली इसमें आपको बहुत तपस्या है ये, राइट? इसमें रियली में तपना पड़ता है एक्चुअली, राइट? बिकॉज आपके सर के ऊपर ऑडिटर्स भी हैं और आपके सर के ऊपर कस्टमर्स भी हैं, एंड देन इन्वेस्टर्स आर आल्सो देयर, सो यू आर आंसरेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन। करेक्ट, राइट? जब आप जॉब कर रहे हो तो आपको सिर्फ अपनी सैलरी कमानी है। जब आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको और 50 लोगों की सैलरी भी कमानी है जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जिनका घर आपके लिए चल रहा है। बराबर। सो बेसिकली इट इज समथिंग व्हिच गिव्स यू लॉट ऑफ लिबर्टी इन योर थिंकिंग प्रोसेस. It is something which gives you a lot of liberty in doing what you really want to do, but alongside it is not a no answerability kind of a situation. You are very much answerable. You are very much answerable to many people. You are very much answerable to many teams, right? But अगर आपका सच में एक इच्छा है कि आपको लॉन्ग टर्म में एक लिगेसी बनानी है, आपको लॉन्ग टर्म में अपनी एक छाप छोड़नी है, तो उसके लिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए। और आपके मन में अगर ये है कि आप में लॉन्ग रेस दौड़ने की क्षमता है, तब आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहिए। इट्स नॉट अ शॉर्ट रेस, इट्स अ मैराथन, राइट? जिसमें कि बहुत सारी स्टेमिना लगता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और आपको उन सभी को वेदर करके आगे बढ़ना है, राइट? सो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें यही है कि एक पर्टिकुलर थॉट से एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती है। आपको पिवट करना पड़ता है, मार्केट चेंज हो जाती है, राइट? नई चीजें आ जाती हैं और आपको उनके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। लोगों को ये लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब पैसा छापने का मशीन है, राइट? मैं भी 11 साल से एंटरप्रेन्योर हूं। मैं बहुत प्राउडली ये कहता हूं, उससे पहले जब 10 साल मैंने नौकरी की थी, ओके, तब भी मैंने उसको अपना धंधा जैसे ही चलाया, क्योंकि मेरा जो गुरु था उन्होंने मुझे यही बताया कि नौकरी जो है वो धंधा ही है, लेकिन किसी और का पैसे पे, राइट? आई थिंक वो पाथ हम अभी भी फॉलो करते आए हैं। सो ये कोई ग्लैमरस काम नहीं है, तपस्या इज द राइट वर्ड, और आप में वो तपने की क्षमता है, राइट? और आप पिवोट करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अगर हम हमारा ही बिजनेस देखें, पिछले 11 साल में 3 बार पिवोट हो गया। अगर हम पिवोट नहीं करते तो वी वुड हैव पेरिश्ड, खत्म हो गए रहते। हमारे साथ में लोग थे, वो खत्म हो गए, कुछ लोगों ने पिवोट कर गए जो सर्वाइव कर गए। अब मैं थोड़ा सा स्पीड टेक के बारे में जानना चाहता हूं। स्पीड टेक में यदि अगर आप बताएं हमारे व्यूअर्स को, आप क्या सोच रहे हैं, राइट? राया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे काफी सारे बिजनेसेस अक्रॉस द ग्लोब यूज कर रहे हैं राया को। आपका क्या व्यू है राया को लेके? हाउ डू यू सी कि इसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड क्या चेंजेस जनरेटिव एआई में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो पिवट होना बहुत जरूरी है सब कुछ, बट आपको एक पाथ को भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन, विजन। जैसे कि अभी हम बात करें स्पीड टेक राया, इट्स दैट विजन एट दिस मोमेंट, राइट? सो एंड इट्स नॉट अ मोमेंटरी विजन, इट इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी वेल थॉट
and researched path that we are following now. करेक्ट, राइट. सो हमको लाइक 2022 में हमने जनरेटिव एआई पे काम करना शुरू किया था जी, एंड फुल फ्लैश्ड हमने 2023 में उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया और 24 वाज द ईयर व्हेन वी एक्चुअली केम आउट विद द एमवीपी फॉर टेलीफोनी एंड और हमने सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर दिया. हमने जो सब कुछ उसके लिए जो करते आ रहे थे हम 9-10 साल, सब कुर्बान कर दिया हमने. राइट. हम्म. हमने स्पीड टेक में अपनी सर्विसेज को चालू रखा. करेक्ट, राइट. बिकॉज उनमें जो किक मिलती है, जो नॉलेज मिलती है, वो एक अलग ही सिनेरियो है और वो हमको फीड करती है हमारी स्पीड टेक जिंदा रहने के लिए. जिंदा रहने के लिए और स्पीड टेक को समझने के लिए और ज्यादा कस्टमर को और समझने के लिए हमको फीड करती है. हम्म, बट जो फोकस राया पे है और उसमें भी मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा राजेश, टेलीफोनी, राइट, जो वॉइस है, कन्वर्सेशनल है, सो दैट इज अवर मेन स्टे. और हम अभी अपना 80% एफर्ट जो है सोच, जिसमें कि टेक्नोलॉजी स्टैक हो गया, हमारी बिजनेस डेवलपमेंट एफर्ट्स हो गए, वो सारी की सारी चीजें जो हैं उसका 80% ऑफ एफर्ट इज गोइंग टुवर्ड्स टेलीफोन. जी, उसका रीजन यही है कि टेलीफोनी एक बहुत बड़ा यूज केस है और इसमें स्कोप बहुत है, इसमें कंपटीशन भी बहुत है, ठीक है, बट जब मार्केट बड़ा है तो कंपटीशन मायने नहीं रखता है. करेक्ट. और स्पेशली इसमें कंपटीशन से हम लोग कहाँ पे डिफर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. वी आर अ सेट ऑफ वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल. राइट. हमारी जो टीम है दैट इज अवर स्ट्रेंथ, जो कि और लोगों के पास नहीं है. जी, वो टीम के साथ बैठ के सोचना, उसको आगे बढ़ाना और उसको रेलेवेंट रखना करंट मार्केट के साथ, कस्टमर का फीडबैक के हिसाब से. कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से, और आसपास टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, ठीक है, उनके लिए उसको प्रिपेयर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. राइट. जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत लोग बना रहे हैं एजेंटिक फ्रेमवर्क, बहुत लोग ये कर रहे हैं, बहुत लोग ई-कॉम स्वीट्स भी बना रहे थे. राइट. अमेज़न सर्वाइव किया. राइट. बहुत सारे लोगों ने पहले बहुत कुछ किया, बट उसमें एक हैंडफुल ऑफ पीपल ही सर्वाइव करते हैं और बहुत सारे लोगों का इन चीजों को करना हमारे लिए फायदेमंद ही है. बिकॉज जब हमने 2023 में टेलीफोनी के बारे में सोचा था और 24 में जब हम लोगों को बात करते थे, अवेयरनेस नहीं था. People used to see it as a magic, right? Something magical is happening. Correct. Right? Phone is talking on its own without a human being on the other side. But लोगों ने अभी वो बहुत देख लिया है. And that is now making our road easier जब हम कस्टमर के पास जाते हैं. Correct. कस्टमर ने पहले किसी ना किसी का डेमो लिया होता है, जी, उसने समझा होता है पहले से, तो उसकी जो समझ है हमको उसको एक स्टेप आगे लेके आना है या फिर उसकी समझ को हमको हमारी तरफ लेके आना है. जी, राइट. और इसमें जो डेप्थ है इस पर्टिकुलर एरिया में टेलीफोनी के कन्वर्सेशनल, इट इज टू मच. राइट. बिकॉज आपको स्पेशलाइज रहना है, आपको स्पेशलाइज काम करना है, आपको लोगों के लिए वो बनाना है जो कि उनको चाहिए. जी, और इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं. तो इसके लिए ये एक चैलेंजिंग पाथ है और इसको चैलेंज को हमने कबूल किया और इसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. दिन रात तरक्की कर रहे हैं इसके ऊपर आगे जाने के लिए. और इसमें जब हम बात करते हैं कि हम अभी क्या करना चाहते हैं इसमें, एक तो जैसे कि मैंने बोला कि हम डेप्थ बढ़ाना चाहते हैं इसमें. डेप्थ से क्या मतलब है? वर्टिकलाइजेशन सॉल्यूशंस का. Right? जैसे कि रिक्रूटमेंट इज अ बेबी फॉर अस राइट नाउ, सो it is immensely progressed the day I started working on it. So I am working with my team, जिसमें कि हम रिक्रूटमेंट के जो एफर्ट्स हैं, जो कि एक डेली या एक बहुत छोटा सेटअप है जिसको कि रिक्रूटमेंट के लिए खुद ही सब कुछ करना है, और एक मिड साइज कंपनी का जो सेटअप है जिसमें कि उनको इंटरव्यूज को ऑटोमेट करना है, बिकॉज दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम मैन्युअली लुकिंग एट द रिज्यूमे and then just calling people and asking whether you are available at that particular time. Correct. Right. So first level of जो इंटरव्यू है, तो वो रेज्यूमे में भी डेप्थ, हम जो रिक्रूटमेंट भी डेप्थ इसलिए बढ़ा रहे हैं बिकॉज वी हैव द सॉल्यूशन रेडी विद अस which will interact with the person who is basically eligible for that job. Correct. Right. So telephony. So जो verticalization of solutions है, that is something that we are looking now as a future, because उसमें ये recruitment का एक solution हो गया, फिर लीड क्वालिफिकेशन, कस्टमर सपोर्ट, इन सभी में बहुत डेप्थ की जरूरत है. सो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स एडिंग डेप्थ टुवर्ड्स सॉल्यूशन.
ग्रेट। सो हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग पहला कंपनी थे जो इंडिया में जेन एआई वॉइस असिस्टेंट लाया था। आज काफी सारे कंपनियां हैं, 3.5 साल हो गए, अभी 4 साल होने को आया है। दिवजोत वाज द वन हु स्पीयरहेडेड दैट। आज टुडे वी हैव ए गुड टीम हु इज helping us to progress in a faster environment and keeping up with the competition, because I believe that competition से काफी सारा चीजें सीखना है। एंड आपका कस्टमर यदि अगर आपको वो सिखाए, उससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। पैसा भी मिल रहा है, सीखने को भी मिल रहा है। तो जो कन्वर्सेशनल एआई है आज हम लोग ग्लोबली सेल कर रहे हैं। हाल ही में हमने एक नया यूज केस देखा, कस्टमर ने लेके आया, जहाँ पे आपको मालूम ही है हमारा कस्टमर जो दिल्ली में है, उनका जो कस्टमर है वो स्पेनिश है, जो लेकिन टर्की में है। ओके, उनको चाहिए टर्की नंबर, लेकिन वो बात करेगा स्पेनिश में। एंड उन्होंने राया को इसलिए चुना है। कल आपने उनके साथ कॉल भी किया था। तो इस तरह का जब यूज केसेस आते हैं और बिजनेस कम्युनिकेशन को हम एनहांस करते हैं, राइट, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है वो तभी सर्वाइव कर पाएगा जब उस कस्टमर्स का 3 लाइफ साइकिल को वो टेक केयर करते हैं। एक्विजिशन हो गया, रिटेंशन वाला जो पार्ट हो गया है, एंड देन क्रिएटिंग ए लाइफ टाइम वैल्यू, LTV, राइट। राया ये तीनों चीजों को करते हैं और वेरी वेरी प्राउड एंड ब्लेस्ड दैट यू आर स्पीयरहेडिंग दैट अलोंग विद द अदर टीम मेंबर्स, राइट। तो दिवजोत, मैं आपको 2010 से जानता हूं। तब से मैं आपका एक चीज का बहुत बड़ा एडमायरर हूं, ओके, द एंटरप्राइजिंग स्किल्स दैट यू हैव, राइट। और जब हम साथ में फुल टाइम काम करने लगे, मैं और बड़ा फैन हो गया इस चीज का, क्योंकि आपने लाइफ में कभी सेल्स किया नहीं, राइट। और मुझे लगता है कि एवरी फाउंडर शुड बी अ सेल्स पर्सन। ही शुड बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट ही इज मेकिंग, राइट। तो मैंने ये देखा कि आप जाते थे, स्पेशली जब हम राया बनाना शुरू किया, स्पीडटेक का सर्वाइवल मोड एक ही था कि सर्विसेज से पैसा बनाओ, और वो सर्विसेज ऑर्डर्स जो लाने थे वो सिर्फ आप ही कर सकते थे। उस एक फेज में मैंने देखा है कि आप प्रैक्टिकली हर रोज आपका क्लाइंट मीटिंग्स होता था, कभी रिजल्ट आते थे, कभी नहीं आते थे। तो जो व्यक्ति कभी लाइफ में ऑफिस छोड़ के बाहर गया नहीं, ओके, और ये मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी बता रहा हूं जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। दिवजोत एक टेकी है, सेल्स कभी एज ए प्रोफेशन किया नहीं है इन्होंने, बट ही इज वेरी गुड एट एंटरप्राइजिंग नेटवर्किंग। हमारे जो टेकीज हैं, जो व्यूअर्स हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं एंड दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपने जो एक्सपीरियंस किया आज भी आप, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक प्रोडक्ट है, हमारा ग्रुप बिजनेस में हमने जब बाशो लॉन्च किया, आपने उसमें काजू सेल किया था, फर्स्ट ऑर्डर आपने ही लेके आया था। आपने इन्वेस्टमेंट्स रेज किए हैं, जबकि आप खुद भी एक इन्वेस्टर है बिजनेस में, राइट। आपने दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर रेफर किए हैं, जो लोग हमारे साथ आज भी करते हैं काम, राइट। तो इस टाइप का जो माइंडसेट है, ये आप में कहां से आए? और एक व्यक्ति जो आईटी में है, से कॉग्निजेंट में है, टीसीएस में है, आज फाउंडर बनना चाहते हैं, क्योंकि हम इस दौरान काफी लोगों से मिले भी है, राइट, जो हम दोनों कन्विंस यार इनमें वो स्किल्स नहीं है, एंटरप्राइजिंग स्किल्स नहीं है, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूं आप कुछ कहें उनके लिए, ताकि उनके लिए भी ये लर्निंग हो। ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना अपने आप में एक बहुत बोल्ड डिसीजन है, राइट। सो लोग वो डिसीजन ले लेते हैं एंड उसमें फिर सरवाइव करना हर रोज का एक डिसीजन मेकिंग है, जिसके लिए कि आपको करना है। तो जब मैं मेरी एंटरप्रेन्योरशिप और लाइक सेल्स की बात करता हूँ, तो मेरी इसमें एक बिलीफ है राजेश, कि जो फाउंडर है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसको सेल खुद को ही करना है। बिल्कुल, राइट, ही इज द लीडर। वेरी वैलिड पॉइंट, राइट, ही इज द लीडर, पीपल विल फॉलो हिम, या राइट। सो उसको लीड बाय एग्जांपल करना है, और लीड बाय एग्जांपल तभी होगा जब तुम एक्चुअली सेल करके दिखाओगे। बनाना एक एस्पेक्ट है और सेल करना टोटली दूसरा एस्पेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक समथिंग व्हिच इज सेलेबल, राइट। यू डोंट मेक समथिंग व्हिच इज बिकना जिसके लिए बहुत मुश्किल है,
ठीक है, तो बट हर चीज मास के लिए नहीं होता है, बट यू मेक निश प्रोडक्ट्स एज वेल, बट फिर भी वो बनाओ जो कि बिकने लायक हो, जैसे कि राया टेलीफोनी है, इट्स अ नीड, राइट, ये एक बिजनेस का बेसिक रिक्वायरमेंट, जरूरत है। तो इसी तरह से जब हमने सर्विसेज को भी सेल करना शुरू किया तो हम लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उसको एड्रेस कर रहे थे। एंड एक बहुत बड़ी चीज ये कि कन्विक्शन आपकी, ठीक है, जो सेल करने के टाइम पे जो आपकी कन्विक्शन है, एक फाउंडर से ज्यादा और किसी दूसरे बंदे की कन्विक्शन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ बिल्कुल नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, घर पे बैठ के काम नहीं होगा, और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे सेल करना चाहते हो उस टाइम पे भी आपको इंटरनेशनली भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल राइट, हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स अभी इसलिए कम है स्पीडटेक के, बिकॉज वी हैव आवरसेल्फ नॉट गॉन आउट, राइट, हम इधर बैठ के, बिकॉज हम इंडिया में मार्केट को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। हमने राया 2024 में इंडिया में इसलिए नहीं सेल किया क्योंकि वो इंडिया मार्केट के लिए अडेप्टेबल नहीं था, करेक्ट, राइट, उसमें इंडिया का नंबर नहीं था, इंडिया की भाषाएं नहीं थी। अभी अगर हम बात करें, हमारे पास इंडिया भी है, हमारे पास ग्लोब भी है, और हमारे पास इंडिया में भी सेल करने के लोग हैं, हमारे पास ग्लोबल भी सेल करने के लोग हैं। सो दैट्स व्हाई अवर लाइक 360 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट जो कि अवेलेबिलिटी वो हो चुका है जी। तो इसलिए अगर आपने राजेश अभी फील किया होगा, अभी मैं भी उतना नहीं भागता हूँ बाहर जाने के लिए, राइट, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी टीम है, मुझे उनके लिए मटेरियल बनाना है जो कि सेलेबल हो, उनके लिए वो चीजें बनानी है जो कि उनको प्रोडक्ट को आगे लेके जाने के लिए काम है। बिल्कुल। सो आई एम पुटिंग माय एफर्ट, माय ब्रेन, माय थिंग्स, एवरीथिंग, सो दैट आई कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू माय टीम व्हिच इज नाउ बिल्डिंग इट, एंड आई कैन लीड देम फ्रॉम द फ्रंट, नई कस्टमर्स लेके आने के लिए, नए तरह के इनिशिएटिव्स करने के लिए। तो वो सारी चीजों के लिए भी मैं मेरा एफर्ट डालता हूँ ज़्यादा। बिल्कुल।